السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ منظر اب تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اپنے ہی یوٹیوب چینل روشن اکیڈمی پر۔ اب تمام لوگ ویڈیوز کو لائک نہیں کیے ہیں تو لائک کر دیجئے، اور اگر ہمارے یوٹیوب چینل روشن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر کر بیل والے آئیکن کو پریس کر کر نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا، تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ تو آج میں بتا دوں، اس سے پہلے والے ویڈیوز میں ہم بولے تھے آپ لوگ کو کہ کل ہم قواعد پڑھائیں گے، تو آج ہم قواعد پڑھانے والے آپ کو بالکل شروع سے پڑھائیں گے قواعد۔ چلتے ہیں پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میٹرک ہو یا انٹر دونوں میں قواعد 30 نمبر کے پوچھتے ہیں۔ کتنے نمبر کے؟ 30 نمبر کے پوچھتے ہیں، تو ہم کو اچھے سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بول دوں، قواعد جو ہے یاد کرنے کا نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ سمجھنے کا ہے۔ بالکل باریکی سے سنیے، اس کے بعد پھر سمجھیے۔ آپ یاد کرنے کا نہیں ہے، دماغ کو کھولیے، اس کے بعد پھر سمجھیے۔ چلتے ہیں، یہ آپ کا پہلا سبق ہے، میں سبق لکھ دے رہا ہوں، یہ سبق آپ کا پہلا ہے۔ سبق نمبر آپ کا یہ آپ کا پہلا ہے۔ کیا سبق نمبر آپ کا یہ پہلا ہے؟ چلتے ہیں، یہ میٹرک پلس انٹر 2025 یہ دونوں کے لیے ہے، نہ کہ میٹرک کے لیے۔ انٹر کے لیے بھی اور میٹرک کے لیے بھی، یہ دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم جانیں گے قواعد کسے کہتے ہیں نا۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے قواعد کسے کہتے ہیں۔ قواعد، چلیے یہ کیا ہے آپ کا قواعد، جسے ہم لوگ ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ ویاکرن۔ کیا بولتے ہیں؟ ویاکرن، یا پھر انگلش میں بولتے ہیں گرامر۔ کیا بولتے ہیں؟ گرامر، ہے نا۔ چلیے ہم لکھ دے رہے ہیں، کیا ہندی میں آپ کا کیا بولتے ہیں؟ ویاکرن۔ کیا بولتے ہیں؟ ویاکرن، ہے نا۔ ویا چلیے ہندی میں ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ویاکرن بولتے ہیں نا، ہندی میں بولتے ہیں ویاکرن، اردو میں بولتے ہیں کیا؟ قواعد بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ قواعد۔ تو قواعد کہتے کسے ہے؟ سب سے پہلے قواعد کسی بھی زبان کو صحیح بولنا اور لکھنا، ان اصولوں کو جاننا ضروری ہے، انہی اصول کو ہم قواعد کہتے ہیں۔ بولیے میں ساتھ میں آپ، قواعد کسی بھی زبان کو صحیح بولنا اور لکھنا، ان اصولوں کو جاننا ضروری ہے، اور انہی اصولوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قواعد کہتے ہیں، ہے نا۔ تو لکھتے ہیں ہم لوگ، قواعد کسے کہتے ہیں نا، قواعد کسے کہتے ہیں۔ چلتے ہیں، قواعد کسے کہتے ہیں تو ہم کو لکھنا ہے۔ چلیے میں ساتھ میں لکھیے آپ لوگ، قواعد کسے کہتے ہیں نا۔ چلیے، قواعد کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی زبان کو، کسی بھی زبان کو صحیح 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 بولنے اور لکھنے کے لیے، کیا بولے؟ بولنے اور لکھنے کے لیے ان اصولوں کو جاننا ضروری ہے، یعنی قانون کو جاننا ہے۔ اصول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قانون، ہے نا۔ چلیے، ان لکھنے، بولنے اور لکھنے کے لیے، ہے نا، کے لیے ان اصولوں کو، کیا ان کے لیے ان اصولوں کو جاننا، پھر کیا ہوتا ہے مطلب؟ قانون، ہے نا۔ اصولوں کو، ہے نا، اصولوں کو جاننا ضروری ہے،
इन्हीं उसूलों को हम, है ना, इन्हीं उसूलों को हम, देखिए, उसूलों को हम कवायद कहते हैं। कवायद कहते हैं है। क्या लिखे, देखिए, कवायद किसी भी जुबान को सही सही बोलने और लिखने के लिए उन उसूलों को जानना जरूरी है, उन कानून को जानना जरूरी है। जहन उन्हीं उसूल को हम क्या कहते हैं, कवायद कहते हैं। हम हिंदी में क्या पढ़े हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से सही सही बोलना और लिखना सीखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। वैसे हम लोग उर्दू में क्या बोले, किसी भी जुबान को सही सही बोलने और लिखने के लिए उन उसूलों को, उन कवानीन को जानना जरूरी है। उन्हीं उसूल, उन्हीं कानून को कवायद कहते हैं। चाहे कोई सा भी जबान हो, नेपाली हो, मराठी हो, पंजाबी हो, तो जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कवायद को पढ़ना होगा आपको। जैसे उर्दू को जानने के लिए क्या पढ़ते हैं, उर्दू कवायद पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ना तो हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं, है ना। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले कवायद की जरूरी होती है ना। चलिए, अब बोले कवायद कितनी किस्सा है, कितने हिस्से में बांटा गया है, तो कितना हिस्सा है इसका, 5 हिस्सा। कितना हिस्सा है, 5 है। क्या क्या है, क्या क्या है, इल्म हिज्जा, ये तो हम नहीं पढ़ाएंगे, आपको बता दे रहे हैं ना। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बलागत, इल्म उरूज, है ना। ये आपका क्या हुआ, इसके किस्में है। और हिंदी में क्या हुआ, हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे कि वर्ण विचार, शब्द विचार, है ना, वाक्य विचार, छंद विचार, चिन्ह विचार। और इंग्लिश में क्या पढ़े हम लोग, ऑर्थोग्राफी पढ़े है, इटिमोलॉजी, सेंटेंस, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। देखिए, सबका खंड है। आपको अगर पूछे एग्जाम में कि कवायद कितनी किस्में है, कितनी हिस्सा है, कितना पार्ट्स है, तो क्या बोलना आपको, 5 है। कितना है, 5 है ना। उसको तो हम आगे बढ़ेंगे, उसमें आगे नहीं पढ़ेंगे। चलिए, अब लिखेंगे हम, ये तो आपका पहला टॉपिक हुआ ना, ये आपका टॉपिक है ना, कुछ इम्पोर्टेंट बात है ना। चलिए, इसको पढ़ लिए। दूसरा पढ़ेंगे हम, दूसरा क्या पढ़ेंगे, ये जो आपका कवायद है, क्या है, कवायद जो है, कवायद किसका जमा है, कवायद, कवायद जो आपका वर्ड है ना भैया, ये अल्फाज जो है, ये आपका जमा है। तो कवायद जो है, कवायद, कवायद कायदा की जमा, किसका कहता है, कायदा की जमा है, जमा। देखिए, कवायद कायदा की कर, देखिए, कायदा की जमा है, क्या है, जमा है। ये देखिए, अगर पूछ ले, ये जो कवायद जो अल्फाज आपका है, ये आपका जमा वर्ड है। ये जो कायदा है, ये आपका वाहिद है। तो वही कह रहा है टॉपिक, क्या कह रहा है कि कवायद, कवायद कायदा की जमा है। क्या है, कवायद कायदा की जमा है ना। दो पहले टॉपिक, तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा क्या पढ़ेंगे, रस्मुल खत किसे कहते हैं, क्या पढ़ेंगे, रस्मुल खत किसे कहते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको लिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। तो ये बोला कि रस्मुल खत, है ना। रस्मुल खत किसे कहते हैं, चलिए, रस्मुल खत, रस्मुल खत, चलिए, रस्मुल खत आपको क्या बोला, रस्मुल खत हर जबान के, देखिए, क्या है कि हर जबान के बोलने और लिखने के लिए, बोलने और लिखने के लिए आवाज की क्या होती है, अलामत होती है, यानी चिन्ह होती है ना। जैसे हम लोग चिन्ह बोलते हैं, अलामत क्या होता है, निशाना, फिर चिन्ह, है ना। तो बोला कि रस्मुल खत किसे कहते हैं। चलिए, रस्मुल खत यानी हिंदी में भी लिख रहे हम लोग, है ना। रस्मुल खत यानी लिपि, लिपि, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, लिपि बोलते हैं ना। आप लोग पढ़े होंगे लिपि, हिंदी व्याकरण में, है ना। चलिए, क्या लिखे, लिपि, क्या लिखे, रस्मुल खत यानी लिपि, है ना। चलिए, तो बोला किसे कहते हैं भैया, किसे कहते हैं, यानी जबान के लिखने, जबान के लिखने और बोलने के लिए किसकी क्या होती है, आवाज की, यानी ध्वनि की, साउंड की क्या होती है, अलामत होती है, निशान होती है, चिन्ह होती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिपि यानी रस्मुल खत कहते हैं। तो जो लिखते क्या बोलेंगे कि जबान के, है ना। चलिए, क्या लिखते हैं कि जबान के, जबान के ये कर दे रहा, हर जबान कर देगा ना, जबान कोई सा भी करेगा ना,
हर जबान के, चलिए जबान कोई सा भी हो, हर जबान के, चलिए हर जबान के क्या लिखे है, हर जबान के, हर जबान के लिखने, है ना, लिखने और बोलने के लिए, लिखने और हर जबान के लिखने और बोलने के लिए, बोलने के लिए किसकी होती है, आवाज की अलामत होती है ना, आवाज की अलामत, है ना, चलिए अलामत होती है, क्या होती है, उन्हीं अलामत को हम, उन्हीं आवाज को, उन्हीं साउंड को हम, ध्वनि को हम क्या कहते हैं, रस्मुल खत यानी लिपि कहते हैं। देखिए, है ना, तो उन्हीं अलामत, आवाज की अलामत होती है, इन्हीं अलामत को, उन्हीं निशान को, इसका माने क्या होता है भैया, इसका माने होता है चिन्ह या फिर निशान, है ना, शक्ल, है ना, वही बोल रहा है शक्ल। चलिए उन्हीं अलामत को क्या लिखेंगे, उन्हीं अलामत को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं, चलिए उन्हीं अलामत को हम को हम रस्मुल खत, है ना, रस्मुल खत, चलिए रस्मुल खत यानी लिपि, है ना, यानी लिपि कहते हैं, चलिए यानी लिपि। हिंदी में देखिए भाई आपको लिख दे रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना, चलिए यानी लिपि, यानी लिपि कहते हैं। देख क्या लिखे, रस्मुल खत किसे कहते हैं भैया, हर जबान के, बोलिए मेरे साथ, कि हर जबान के लिखने और बोलने के लिए आवाज की अलामत होती है, यानी साउंड होती है, उन्हीं अलामत को, उन्हीं साउंड को, ध्वनि को हम रस्मुल खत कहते हैं, है ना। चलिए जैसे कि रस्मुल खत क्या है, अलामत, जैसे कि अलामत किस चीज का भैया, ये आपका, जैसे अलिफ की निशान क्या है, अलिफ का शक्ल क्या है भैया, अलिफ की शक्ल ये है, ये आपका अलिफ की शक्ल है ना भैया, ये आपका क्या शक्ल है, ये शक्ल बा का है। अगर बा को हम इस तरीके से लिख दिया जाए कि बा बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे तो आज का अलामत बिगड़ जाएगा, तो उसको बा हम नहीं बोल सकते, इसकी जो शक्ल है उसको उसे लिखना होगा। जैसे आपका जिम का शक्ल है, ये आपका जिम है, अगर जिम को हम इस तरीके से लिख दें, ये जिम है, तो चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये करा कि हर जबान के लिखने और बोलने के लिए आवाज की अलामत होती है, उन्हीं अलामत को हम लोग क्या कहते हैं, रस्मुल खत कहते हैं। चलिए हिंदी, हिंदी का रस्मुल खत क्या है ना, तो हिंदी, हिंदी देवनागरी, है ना, हिंदी, हिंदी देवनागरी, देवनागरी, है ना, हिंदी देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है। देखिए, देखिए देवनागरी में जो है ना, देवनागरी में आपका हिंदी भी आता है, संस्कृत भी, नेपाली भी, मराठी भी, ये तीनों आपका, ये चारों जो है आपके देवनागरी लिपि में लिखी जाती है रस्मुल खत में, है ना। तो हिंदी देवनागरी रस्मुल खत है, हिंदी देवनागरी रस्मुल खत में, हिंदी देवनागरी नागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है, रस्मुल खत, रस्मुल खत में लिखी जाती है, जबकि हिंदी देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है, जबकि उर्दू, जबकि उर्दू
जबकि जबकि उर्दू उर्दू फारसी लिपि में उर्दू अरबी और फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू अरबी और फारसी लिपि में लिखी जाती है। फारसी लिपि में फारसी रस्मुल खत में ना रस्मुल खत में लिखी खत में लिखी जाती है। क्या लिखे? हिंदी देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है, जबकि उर्दू अरबी और फारसी रस्मुल खत में लिखी जाती है। ये आपका हुआ चौथा टॉपिक। क्या है? आपको पूछ लगा कि उर्दू जबान में कितने खत हैं। क्या बोलेंगे? उर्दू जबान में कितने खत हैं? तो लिखना है कि उर्दू जबान में, है ना, उर्दू जबान में उर्दू जबान में में दो खत है। कितना खत है? दो खत है। उर्दू जबान में कितना खत है? दो खत है। उर्दू जबान में दो खत है। क्या क्या है? पहला आपका है खत्ते खत्ते नस्ख। पहला क्या है आपका? खत्ते नस्ख। खत्ते नस्ख नस्ख। दूसरा आपका है खत्ते नस्तालिक। क्या? खत्ते नस्तालिक। चलिए, खत्ते नस्तालिक। खत्ते क्या हुआ? नस्तालिक। देखिए क्या है कि उर्दू जबान में कितने खत है। तो कहना है कि उर्दू जबान में दो खत है। क्या क्या है? खत्ते नस्ख, दूसरा है खत्ते नस्तालिक, है ना। अब पूछेंगे खत्ते, है ना, खत्ते नस्ख क्या है? खत्ते नस्ख क्या है? तो कहना है खत्ते नस्ख मैं आपको बता दूं, खत्ते नस्ख जो है अरबी की, है ना, अरबी की मशहूर तरीन खत है। और खत्ते नस्तालिक जो है फारसी की मशहूर तरीन खत है। अरबी क्या? जैसे कि आपका अरबी हुआ, जैसे कि ये हुआ, जैसे उर्दू। चलिए, ये उर्दू हुआ, ये उर्दू आपका ये हुआ, इस टाइप का। देखिए जो मतलब ये लाइन में, ये आपका लाइन है। अगर लाइन में लिखा जाए जैसे कि आपका उर्दू लाइन में, ये रहा अरबी का जैसा, है ना, इसको बोलता है खत्ते नस्ख। आपको जो कुरान है वो आपका खत्ते नस्ख में लिखा हुआ है। अब ये उर्दू जो है, उर्दू ये जो आपका लिखा हुआ है, ये आपका खत्ते नस्तालिक में लिखा हुआ है ना, जो लाइन को छोड़ के लिखती है ना। चलिए, तो खत्ते नस्ख जो है अरबी का, है ना, खत्ते नस्ख। खत्ते नस्ख पहला है कि खत्ते नस्ख, खत्ते नस्ख नस्ख ये क्या है इसका? अरबी का, अरबी का का मशहूर तरीन खत है। तरीन खत है ना, ये आपका ये वाला है। क्या लिखे? खत्ते नस्ख अरबी का मशहूर तरीन खत है। और जबकि खत्ते जबकि खत्ते जबकि जबकि खत्ते नस्तालिक। क्या? खत्ते नस्तालिक के के नस्तालिक खत्ते नस्तालिक क्या? फारसी जबान का था जो उर्दू में लिखती है वो। फारसी जबान, फारसी की मशहूर तरीन खत है। फारसी की मशहूर मशहूर तरीन खत है। तरीन खत है।
चलिए क्या लिखे, उर्दू जबान में कितने खत है, 2 खत है। कितना खत है, 2 खत है। क्या क्या है, तो खत नस्ख, खत नस्तालिक। खत नस्ख क्या होता है, आप जो कुरान जो आपका लिखा हुआ है, जो लाइन में लिखा जाए उसे बोलते हैं खत नस्ख, यानी अरबी जुबान में, है ना, चलता है खत नस्ख। और खत नस्तालिक जो आपका उर्दू में लिखा होता है ना। चलिए ये क्या है, खत नस्ख यानी अरबी का, देखिए खत नस्ख अरबी का मशहूर तरीन खत है जो अरबी में लिखा जाता है ये आपका, जबकि खत नस्तालिक फारसी की मशहूर तरीन खत है। चलिए पढ़ लिया आप। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग 1 2 3 4 5, छठा टॉपिक है ना। छठा क्या है आपका, कि उर्दू का माने क्या है, ये आपको पूछेगा कि उर्दू का माने क्या है। तो क्या बोलेंगे, उर्दू का माने लश्कर के क्या है, उर्दू का मान है, उर्दू, चलिए उर्दू के माने, उर्दू के माने, चलिए लश्कर के है, किसके लश्कर के है। देखिए उर्दू के माने क्या है, उर्दू के माने, उर्दू के माने लश्कर के है। आप लश्कर क्यों है, जैसे कि उर्दू के इब्तदाई नाम, है ना। लश्कर किसे बोलते हो भैया, यानी उर्दू का मतलब कई नाम हो, है ना, एक से ज्यादा नाम हो, तो इसका नाम उर्दू का जो है ना 7 नाम है, 7 नाम। तो क्या है, उर्दू की माने लश्कर के है। तो कह रहा है कि उर्दू के, है ना, उर्दू के इब्तदाई नाम, देखिए उर्दू की, उर्दू की इब्तदाई, अलग अलग है ना, इब्तदाई नाम, नाम क्या है, दर्ज झेल है, दर्ज झेल, झेल है। तो क्या क्या है, पहला आपका है, उर्दू का ही नाम है पहला, पहला आपका है हिंद है। क्या है, हिंद उर्दू को ही बोलता है, हिंदवी भी नाम है। और उसके बाद क्या बोलता है, जबान दहली भी नाम है उसका नाम, उर्दू का नाम। और उसके बाद दकनी भी नाम है, उसके बाद उर्दू मुअल्ला है उसका नाम, और रेख्ता भी है उसके बाद फिर क्या है, रेख्ता के बाद आपका है उर्दू। देखिए 7 नाम है इसका, है उर्दू का नाम, 7 नाम है, इसलिए इसको बोला है उर्दू के माने लश्कर के, मतलब कई इसके साथ शामिल है, उसको बोला है लश्कर, है ना। तो उर्दू के माने लश्कर के है। तो उर्दू की इब्तदाई नाम दर्ज झेल है। तो क्या क्या है, तो बता रहे आपको ना, क्या क्या है, पहला आपका है, पहला है हिंद, देखिए हिंद, पहला आपका हिंद है, हिंद। दूसरा आपका है, दूसरा नाम क्या है उर्दू का, हिंदवी, हिंद, हिंदवी। तीसरा नाम क्या है आपका, तीसरा उर्दू का नाम है जबाने दहली, देखिए ये उर्दू का नाम है जबाने, जबाने दहली। चौथा नाम क्या है, चौथा नाम क्या है, दकनी, क्या, दकनी, दकनी। और पांचवा आपका नाम है, पांचवा नाम का नाम क्या है आपका, पांचवा नाम उर्दू मुअल्ला, क्या, उर्दू मुअल्ला, उर्दू मुअल्ला। के बाद छठा आपका नाम है क्या, रेख्ता, देखिए रेख्ता। के बाद आपका सातवां नाम है क्या, उर्दू। देखिए ये उर्दू जो आपको 7वें नंबर पे है, लग रहा है। कह रहा है उर्दू की माने क्या होता है, तो कहना है कि उर्दू के माने लश्कर के है, लश्कर के। उर्दू की इब्तदाई नाम दर्ज झेल है, देखिए कि हिंद नाम है, हिंदवी है, जबान दहली है, दकनी है ना, उर्दू मुअल्ला है, रेख्ता है, उर्दू है, यानी कई लश्कर के साथ शामिल है, इसलिए इसको नाम क्या रखा है, लश्कर के है। देखिए लश्कर के है ना। उर्दू के माने क्या है, उर्दू के माने लश्कर के है। तो बोल देना क्या क्या है, हिंद है, हिंदवी है, जबान दहली है, दकनी है, उसके बाद क्या है आपका उर्दू मुअल्ला है, रेख्ता है और उर्दू है। चलिए इसको, अब उसके आगे बढ़ते क्या है ना। चलिए चलते हैं, इसके बाद क्या बोलेंगे हम लोग, इसके बाद पढ़ते हैं कि हर्फ किसे कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं,
हर्फ किसे कहते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग उसको? वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं ना। उर्दू में क्या बोलते हैं? हर्फ किसे कहती है, भी आपको पूछ सकते हैं ना। चलिए, हर्फ, हर्फ किसे कहते हैं? चलिए, हर्फ, हर्फ, हर्फ किसे कहते हैं? तो बोलना है जबान की, है ना, जबान की सबसे, है ना, सबसे छोटी इकाई को, सबसे से छोटी इकाई को, है ना, को, को हर्फ कहते हैं। क्या पर है हम लोग? क्या पर है? हर्फ, है ना। क्या पर है? हर्फ पर है ना। तो हर्फ जबान की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं, जिसे हम लोग खंड, टुकड़ा या तकसीम नहीं कर सकते, है ना। जैसे ये आपका हुआ हर्फ, ये आपका जीम क्या है? हर्फ है। ये क्या है आपका? दाल हर्फ है। शीन क्या है आपका? ये आपका हर्फ है ना। इसको हम टुकड़ा और नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर सकते। हम लफ्ज को टुकड़ा कर सकते हैं, लफ्ज को, जैसे कि आपका कई हर्फ मिलके जो लफ्ज बनता है, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको शब्द बोलते हैं। कई वर्ण मिलके जो शब्द बनता है, वैसे उर्दू में कई हर्फ मिल करके एक लफ्ज बनता है ना। तो हम वहाँ क्या पढ़े थे हिंदी में? वरना को हम तोड़ नहीं सकते, है ना, टुकड़ा नहीं कर सकते। वैसे हम हर्फ बोल रहे हैं, यहाँ उर्दू में बोलते हैं, हर्फ को हम लोग खंडा तकसीम नहीं कर सकते। चलते हैं कि हर्फ क्या बोले? हर्फ यानी वर्ण, है ना, जबान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहते हैं। जैसे क्या है? जैसे, जैसे आपका है, जैसे अलिफ, बा, ता, था, है ना, वगैरह, वगैरह कर दीजिए आप, काफी है। इसको हम खंड, तोड़, तकसीम नहीं कर सकते, है ना। चलिए, आप बोलते हैं अब क्या कि लफ्ज किसे कहते हैं? क्या लफ्ज किसे कहते हैं? लफ्ज, ये भी आपको पूछेंगे, लफ्ज किसे कहते हैं? तो हमको बोलना है कि हरफों के मजमुआ को, यानी कई हरफ मिलके जो एक लफ्ज बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लफ्ज कहते हैं, है ना। जैसे कि आपका आम हुआ, ये आपका आम, चलिए आम, ये आपका हुआ हामिद, क्या, चलिए हामिद, या फिर साजिद कर दीजिए, है ना, साजिद। चलिए, क्या है? साजिद जो हम किए, इसमें कितना हर्फ आपका है? कितना हर्फ है? आपका सीन है, देखिए, आपका सीन है हर्फ, जोर, आपका अलिफ है, जोर, इसके बाद फिर क्या है? जीम है अलग से, इसके बाद फिर क्या है? दाल है, देखिए, एक हरफ, दो, तीन, चार, यानी हर्फ के मजमुआ, यानी कई हरफ मिल करके एक अल्फाज को पैदा किया, ये है ना। वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कई वर्ण मिल करके एक शब्द को पैदा करता है, वैसे कई हर्फ मिल करके एक क्या, एक अल्फाज को पैदा किया, उसे हम लोग यानी हर्फों के मजमुआ को, हर्फों के मजमुआ को या फिर समूह को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लफ्ज कहते हैं, लफ्ज। ये कह रहा है कि हरफों के मजमुआ को, कई हरफ मिल करके हरफों के मजमुआ को हम लोग क्या बोलते हैं? लफ्ज कहते हैं। तो कह रहा है कि लफ्ज किसे कहते हैं? लफ्ज। तो हरफों के मजमुआ को, हरफों के मजमुआ को, चलिए, हरफों के लफ्ज किसे कहते हैं? हरफों के, चलिए, हर्फ, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं शब्द, याद रखिएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं, हर्फ को। चलिए, हरफों के, हरफों के, है ना, मजमुआ को, मजमुए को, है ना, को, हर्फों के मजमुए को लफ्ज कहते हैं। लफ्ज यानी शब्द कहते हैं। चलिए, शब्द कह रहे होंगे ताकि आपको याद रहे। शब्द कहते हैं। देखिए कितना आसान से है, बस समझना है, बस इसको याद नहीं करना भैया। ये कवायद जो है याद करने का नहीं है, बस समझने का है। क्या करने का है? ये समझने का है।
याद करोगे तो आपको याद होगा, जिंदगी भरे पर तमरो नहीं होगा। इसको दिमाग खोल करके समझना है क्या कह रहा है ये। क्या पढ़े हम? पहले क्या पढ़े थे? हर्फ पढ़े थे। हर्फ किसे कहते हैं? बोलिए, किसे कहते हैं? क्या किसे कहते हैं? जबान की, क्या? जबान की, है ना? जबान की सबसे छोटी इकाई को हम लोग हर्फ कहते हैं, जिसे तकसीम या फिर टुकड़ा भाग नहीं कर सकते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हर्फ कहते हैं। आप देखिए, लफ्ज किसे कहते हैं? हरफों के मजमुआ को, कई हरफ मिल करके हरफों के मजमुए को हम लोग क्या बोलते हैं? लफ्ज कहते हैं, जिसे हम लोग टुकड़ा या खंड कर सकते हैं। जैसे क्या है? जैसे क्या? जैसे हम लेंगे हामिद। चलिए, हामिद को लिए। हामिद के अंदर कई वर्ड है, कई कई हर्फ है ना? हामिद ले लिए, साजिद ले लिए, है ना? और भी लिए, माजिद ले लिए। देखिए, ये सब क्या है आपका? इसके अंदर कई हरफ मिला हुआ है ना? हा है, अलिफ है, मीम, दाल, कितना हरफ? यानी मजमू हरफ के, हरफों के मजमूए को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लफ्ज कहते हैं। तो ये आपका लफ्ज हुआ। हामिद एक लफ्ज है, साजिद एक लफ्ज है ना? माजिद एक क्या है आपका? लफ्ज है। ऐसे चलिए, वगैरह। चलिए, ये भी आप बता दो, आपको क्या बोलते हैं? चलिए, इसके बाद हर्फ पढ़े। ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। वाक्य, जैसे हम लोग बोलते हैं वाक्य, और इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? जुमला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुमला। क्या बोलते हैं? जुमला। इसको भी हम बता दे रहे हैं, जुमला क्या होता है। सबसे पहले हम क्या पढ़े? हर्फ। उसके बाद फिर कई हरफ मिलके लफ्ज बना। अब कई लफ्ज मिलके क्या बनता है? एक जुमला बनता है। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य, या फिर सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में इसको, है ना? चलिए, जुमला किसे कहते हैं? तो जुमला, है ना, लफ्जों के मजमुआ को क्या बोलेंगे? लफ्जों के मजमुए को हम लोग क्या बोलते हैं? जुमला कहते हैं ना? जुमला। चलिए, लफ्जों के, या लफ्ज है, लफ्जों के को को जुमला कहते हैं। क्या क्या बोले थे? हरफों के कई हरफ मिल करके क्या बने? एक लफ्ज बना। अब कई लफ्ज मिल करके तो क्या बन रहा है? जुमला बन रहा है ना? तो लफ्जों के मजमुए को हम लोग जुमला कहते हैं। जैसे कि हामिद, 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 हामिद एक एक अच्छा लड़का है। देखिए, ये आपका जुमला बन गया ना? हामिद एक अच्छा लड़का लड़का है। अब ये देखिए कितना उसमें लफ्ज मिला हुआ है। हामिद एक लफ्ज हुआ, एक लफ्ज हुआ, अच्छा एक लड़का एक लफ्ज हुआ, लड़का। और देखिए, एक लफ्ज, एक, दो, तीन, चार, पांच। देखिए, ये आपका चार लफ्ज है, और एक ये है जो है, ये आपका हर्फ है ना? उसमें कितना लफ्ज? चार लफ्ज मिल करके क्या बना है? जुमला बना है ना? तो हम लोग क्या बोले कि लफ्जों के मजमुए को, लफ्जों के मजमुए को हम लोग क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। जैसे क्या लिखे कि हामिद एक अच्छा लड़का है, वगैरह कर दीजिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हुर्फ तहज्जी कितना है? चलिए, उर्दू में हुर्फ तहज्जी कितना है? जैसे हिंदी में हम लोग क्या पढ़े हैं? वर्णमाला पढ़े हैं, 52 है पूरा। यहाँ यहाँ भी उर्दू में, तो उर्दू में हुर्फ तहज्जी कितना है? ये भी आपका 52 ही है ना? कितना है? 52 ही है। तो लिखना है कि उर्दू में हुर्फ तहज्जी, उर्दू में हुर्फ तहज्जी, हुर्फ तहज्जी कुल, कुल कितना है? आपका 52 है। 52 है। क्या करा है कि उर्दू में हुर्फ तहज्जी कुल कितना है? कुल 52 है। चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। 52 जो है, इसको दो भागों में बांट दिया। क्या 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 बांटा है? पहला तो है आपका मुरक्कब। पहला क्या है? मुरक्कब। ये जो दूसरा दो भाग जो है, पहला भाग क्या है इसका? मुरक्कब है पहला भाग। पहला भाग है आपका मुफरद, यानी अलग अलग हर्फ, मुफरद।
दूसरा भाग आपका है क्या? दूसरा भाग आपका मुरक्कब है। क्या है? मुरक्कब। चलिए क्या पर है? उर्दू में हुर्फ तहज्जी, उर्दू में हुर्फ तहज्जी कुल 52 है। कितना है? कुल 52 है। तो क्या क्या है? पहला है मुफरद, यानी मुफरद कितना है आपका? 37 है। उसके बाद मुरक्कब आपका 15 है। तो मेरा पूरा कितना हुआ? आपका पूरा 52 हो रहा है। चलते हैं देखते हैं, पहले देखेंगे मुफरत क्या कितना है, उसके बाद फिर मुरक्कब। चलते हैं फिर देखते हैं कितना क्या है। चलिए चलिए, ये क्या है? ये आपका हरूफ मुफरत की तादाद कितनी है? 37 है। कितना है? 37 है ना? तो क्या क्या है? चलते हैं। क्या है? अलिफ, हमजा अली मजबर, ये आ है, ये भी है आपका अलिफ। ये अब गिनती में नहीं आएगा, हाँ ये गिनती में नहीं आएगा। इसको जब गिनती करेंगे तो ये पूरे 38 हो जाएगा पूरा, है ना? 38। चलिए ये गिनती में इसको लिख दिया है। चलिए क्या है? अलिफ। क्या है ये? अलिफ, बा, पा, ता, ता, सा, जीम, चा, हा, हा, दाल, है ना? दाल, राल, रा, रा, जा, बड़ी जा, है ना? सीन, शीन, सौद, जौद, ता, जा, आइन, गैन, फा, काफ, काफ, गाव, है ना? ये क्या है आपका? गाव, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या, या। ये क्या आपका हुर्फ मुफरद है। इसकी तादाद कितनी है? कितनी है? 37 है। कितनी है? 37 है। और उसके बाद क्या हुर्फ मुरक्कब है, उसकी तादाद कितनी है आपका? उसके 15 है। कितना है? 15 है। तो चलते उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या है ना? चलिए चलिए क्या है ये? हुर्फ मुरक्कब। क्या है? हुर्फ मुरक्कब की तादाद कितनी है? 15 है। कितना है? 15 है। और ये सारे हरूफ देखिए, ये सारे हरूफ हिंदी जबान के हैं। ये सारे हरूफ क्या है? हिंदी जुबान के है ना? हिंदी जुबान के। क्या है? जैसे कि भा, बा में है लगा भौ, है ना? ये फौ है आपका, पा में है लगा फौ, ता में है लगा थौ, ये ठौ है तो टा में है लगा ठौ, जिम में है लगा झौ, चा में है लगा छौ, दाल में है लगा धौ, है ना? दाल में है लगा ढौ, रा में है लगा रहो, है ना? रहो, और रा में है लगा और हो। देखिए, का में है लगा खो, गाम में है लगा घो, और लौ में है लगा लो, मीम में है लगा भौ, और नून में है लगा नौ। ये आपका क्या है? क्या है? हरूफ मुरक्कब है। इसकी तादाद कितना है भैया? 15 है। कितना है? 15 है ना? ये सारे हरूफ जो है, सारे हरूफ क्या आपका हिंदी जुबान का है ना? हिंदी जुबान के है। चलिए ये भी आपसे पूछते हैं कि हुर्फ इल्लत कितना है? क्या हुर्फ इल्लत कितना है? तो कह देना कि 3 है। कितना है? 3 है। क्या क्या है? अलिफ है। क्या क्या है? पहला है अलिफ, दूसरा है आपका वाव, तीसरा है आपका या। ये भी पूछते हैं एग्जाम में कि हुर्फ इल्लत की तादाद कितनी है ना? तो कहाँ पूछता है? ऑब्जेक्टिव में पूछता है। कहाँ पूछता है? ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हुर्फ इल्लत की तादाद कितनी है? तो कहना है कि 3, है ना? कितना है? 3 है। क्या क्या है? अलिफ, वाव और या। चलिए आज के वीडियोस में इतना ही बस रहने दीजिए, है ना? उसके बाद अगले सबक में सबक नंबर दूसरा हम कल पढ़ाएंगे। तो वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियोस को जो है दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उसका भी फायदा हो जाए, है ना? एग्जाम करीब है आपका, बस 2 महीना बचा हुआ एग्जाम का। इसको अपने दोस्तों को जो है शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तो चलते हैं वीडियोस को फिर हम खत्म करते हैं।